नारायण नारायण न कलंक नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों से ताली। नारायण 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 नकलंक नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नकलंक नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमद भागवत दशावतार ज्ञान यज्ञ प्रायण आज दूसरा दिवस बीजो दिवस में आपणे शुभ शुरुआत करवा जई रह्या छीए। तो प्रथम संतों पूजन આપણે વ્યાસાસને પોથીજીનું પૂજન કરવા માટે તિલક પાદુકા હા સંતોનું પૂજન કરીશું આપણે। એક આજના આ દિવસે શ્રીમદ ભાગવત દશાવતાર જ્ઞાન યજ્ઞનો બીજો દિવસ આપણી સમક્ષ अपना सौना लाडीला एवा सौना हृदय में विराजमान अपना परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर्य श्री जगतगुरु सतपंथाचार्य नानकदास जी महाराज एवं व्यासासने विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय श्री जनार्दन जी महाराज प्रेमदास बापू सौ संतगण अपनी समक्ष उपस्थित थया छे। धन्य भाग्य छे धन घड़ी छे अने आजे आपने आ महायज्ञना बीजा दिवसे कथा श्रवण करवानो जे सद्भाग्य साँपड्यो छे आपणा अहोभाग्य छे। तो शुभ शुरुआत करशुं तेना पहला आपणे पोथीजीना पूजनथी शुरुआत करीशुं। चंदन तिलकथी पूजन करशे जयंती भाई प्रवीण भाई ने विनंती कि चंदन तिलक थी प्रथम आपणे पूजन करीशुं। यो नमो नमः। हवे आपणे पुष्पमाला थी पूजन करीशुं। तो प्रथम ओम हरि ओम महं चंद्रमानक्षोदयक्षो सूर्योदय संश्रोताद्रय प्राणस्य मुखारग्निर्जायत सहस्रशीर्षा पुरुषय शस्त्रपाक्षय शभमीन्दिशाडुगलं पुरुषभ्यो नमः।
પુષ્પમાળાથી અભિવાદન ગુરુપાદોભ્યો મહારાજને. નમો નમઃ. પુષ્પમાળાથી આપણે સર્વે અભિવાદન બ્રહ્મ કરીશું. સુખિના સંતો સર્વે સંતો નિરામય સર્વે ભદ્રાણી નિવસંતો. પોથીજીનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરશે રામજીભાઈ લાલજીભાઈ ચોપડા. સદગુરુ ચરણ પાદુકાનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરશે ભવનભાઈ મુખી. વ્યાસાસને બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર મહંત શ્રી જનાર્દન હરિજી મહારાજનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે રવજીભાઈ વાલજીભાઈ ચોપડા મુંબઈ. મહારાજ શ્રીનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે રવજીભાઈ વાલજીભાઈ ચોપડા. પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર જગતગુરુ સતપંથાચાર્ય શ્રી નાનકદાસજી મહારાજ પ્રેરણાપીઠ પીઠાધીશોનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરશે નરસિંહભાઈ લાલજીભાઈ ચોપડા. નરસિંહભાઈ લાલજીભાઈ ચોપડા પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ સતપંથાચાર્ય શ્રી નાનકદાસજી મહારાજશ્રીનું. બોલીએ સદગુરુદેવ. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી પ્રેમદાસ બાપુ પંચવટી અમેરિકા દેગામનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે અશોક કરમસિંહ લીમાણી સરપંચ શ્રી. એવા જ પરમ પૂજ્ય જયરામદાસજી મહારાજ શ્રી નિષ્કલંકી ધામ નખત્રાણા મહંત શ્રીનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરશે દેવસિંહભાઈ ગોવિંદભાઈ લીમાણી. દેવસિંહભાઈ ગોવિંદભાઈ લીમાણી. પરમ પૂજ્ય રવિદાસજી મહારાજ પ્રેરણાપીઠ પીરાણાનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે અર્જણભાઈ પ્રેમજીભાઈ પોકાર. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી જય ભગવાન દાસ બાપુનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરશે શંકરલાલ દેવસિંહભાઈ શંભુલાલ દેવસિંહભાઈ. શંભુલાલ દેવસિંહભાઈ પરમ પૂજ્ય જય ભગવાન બાપાનું. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી શામજી દાદા નું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે નવીનભાઈ અંબાલાલભાઈ. નવીનભાઈ અંબાલાલભાઈ પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી શામજી દાદા સંત કુંવરમા આશ્રમ વજેપુરા મંત્રી. એવા જ પરમ પૂજ્ય શાંતિદાસજી ભગત શ્રી અખંડ આનંદ કુટીર ગોતા કંપા પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે મણિલાલ ભાણજી પોકાર. મણિલાલભાઈ ભાણજીભાઈ પોકાર. એવા જ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપા નું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે મણિભાઈ ગોવિંદભાઈ તથા મણિબેન મણિલાલ લીમાણી સજોડે. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપાનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન પૂજન કરશે મણિભાઈ ગોવિંદ તથા મણિબેન મણિલાલ લીમાણી સજોડે. આવી જશો માતાજી ઝડપથી. ભૂદેવ શ્રીનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે કાંતિલાલ રવજી ચોપડા. કાંતિલાલ રવજી ચોપડા. અને પાંચ મુખીઓનું પૂજન કરશે વસંતલાલ લદ્દાભાઈ પોકાર, ભવનલાલ રામજી ચોપડા, વસંતલાલ માવજી પોકાર, રતનસિંહ રવજી પોકાર અને દેવસિંહ રામજી માવાણી. પોથીજીનું પૂજન કરવા માટે વડીલ શ્રી શિવજીભાઈ રત્નાભાઈ ચોપડા બાપાને વિનંતી કે પુષ્પમાળાથી પોથીજીનું પૂજન કરશે પુષ્પમાળા લઈને. પાંચે મુખીઓનું પૂજન કરવા માટે આવી જશો ભાઈઓ. હા, આપણે જે આ સમિયાણામાં બેઠેલા છીએ એ સમિયાણાના જે આપણને વાપરવા માટે આપેલ છે કે આ યજ્ઞ મહાયજ્ઞ કરો એનામાં અમારો જે કંઈ સાથ અને સહકાર જોઈશે અને આ વાડીને જે આ જગ્યાને જેને વાપરવા આપી છે એવા શ્રી શાંતિભાઈ શિવદાસભાઈ લીમાણી બારસોલ પોથીજીનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરશે શ્રી શાંતિલાલભાઈ લીમાણી. શાંતિભાઈ આવી જશો. અને આજની આરતી માટે હું જેને કહીશ તે તૈયાર ઝડપથી આવી જશે. નાનજીભાઈ હિરજીભાઈ પોકાર પરિવાર, દેવસીભાઈ હિરજીભાઈ પોકાર પરિવાર, વિશ્રામભાઈ જીવરાજભાઈ પોકાર પરિવાર, મૂળજીભાઈ સેવગણભાઈ પોકાર પરિવાર અને રામજીભાઈ શિવજીભાઈ માવાણી પરિવાર. જે જેના નામ બોલાણા છે એ ઝડપથી આરતી માટે આવી જશો. તમે
ચાલો. हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, श्वेत अश्व तेरे संग में सोहे, श्वेत अश्व तेरे संग में सोहे, श्री बजरंगी मेरो मन मोहे, श्री बजरंगी मेरो मन मोहे, तेरी देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि इत्यारार्तिकं समर्पयामि। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की, सदगुरु इमाम सा महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की, उमिया मात की, सब संतन की। खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद। નારાયણ નારાયણ કાલે સાંજના જે ભોજનના દાતા હતા એ આ પ્રમાણે આજના ભોજન દાતા સાંજના છે જયંતિલાલભાઈ પ્રેમજીભાઈ લીમાણી, અને આજના આખા દિવસના મિનરલ પાણીના દાતા છે શ્રી પ્રેમજીભાઈ વાલજીભાઈ લીમાણી, હસ્તક છબીલભાઈ તથા હરેશભાઈ. દાતાઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજના શુભ પ્રભાતે શુભ મંગલમય દિવસે આ જીયાપર મુકામે શ્રીમદ ભાગવત દશાવતાર જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણના આજે બીજા દિવસે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય શ્રદ્ધેય સત્પંથાચાર્ય જગતગુરુ શ્રી નાનકદાસજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વ્યાસાસને વિરાજમાન પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર મંત શ્રી જનાર્દન હરિજી મહારાજ શ્રીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. સર્વ સંતગણ, सर्वे मुखी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूपा भूदेव श्री एवं सर्वे गाम गाम थी पधारेल धर्मप्रेमी महान महानुभाव वडील श्रीओ, मातृशक्ति एवं आ समियाणा में उपस्थित सर्वे नामी अनामी दिव्य आत्माओं श्री चरणों में वंदन प्रणाम नमस्कार. आप सब आ जियापरना आमंत्रणे मान आपी बहुली संख्या में उपस्थित थया छो, तो आप सबनु आ तबक्के खूब खूब अभिवादन करिए छीए, स्वागत करिए छीए. અને હવે પછી આપણે કથાનું રસપાન કરીશું. તો પરમ પૂજ્ય વ્યાસાસને વિરાજમાન જનાર્દન હરિજી મહારાજ શ્રીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સ પ્રાર્થના કે આગળનો દોર આપ સંભાળશો. પરમ પૂજ્ય જનાર્દન હરિજી મહારાજ. ॐ नमो
निष्कलङ्की नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत शृण्वन्ति दिव्यस्तवे वेदेशां पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमक्षादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज की,
श्री सतपन सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, पंढरीनाथ भगवान की, कुलदेवी उमिया मात की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरु जगन्नाथ महाराज की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो, गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो, प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। बाळ तमारो तमे मारा बा, करेला रे गुनावो करजो रे माफ। बाळ तमारो तमे मारा बा, करेला गुनाओ करजो रे माफ। स्वामी अंतर्यामी, ओ मारा स्वामी अंतर्यामी, दूर करो हमारी रेखा में, गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो, गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो, प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। जगत नारेता शो करिए वा, सदबुद्धि आपो सौने मटे वाद विवाद। जगत नारेता
શું કરીએ માં સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટેવા દીવા અરજી અમારી સુનો ને મોરારી અરજી અમારી સુનો ને મોરારી સમાજની એકતાને અખંડિત રાખો ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો પ્રભુ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન 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 સદગુરુદેવ ભગવાન કી પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા આરાધ્ય દૈવત નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન एवं सदगुरुदेव इमाम शाहजी महाराज मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु सतपंथाचार्य श्री नानकदास जी महाराज श्रद्धेय प्रेमदास जी बापू श्रद्धेय जयरामदास महाराज श्रद्धेय रविदास महाराज श्रद्धेय जय भगवान बापा श्रद्धेय सामजी दादा श्रद्धेय शांतिदास जी भगत सारे संत महात्माओं के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए संतों को दिल से हृदय से अभिवादन करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जन हरि भक्तों को अभिवादन करता हूँ। आप सबको खूब खूब धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। जीवन में परम कृपालु परमात्मा की कृपा जब बरसने लग जाए, जीवन में परम कृपालु परमात्मा की जब मेहर नजर हमारे ऊपर हो जाए, जब हम हमारे कर्तव्यों से हमारी पात्रता बनाए, हमारे त्याग से, हमारे जप से, हमारे दान से, हमारी सेवा से, हमारे परोपकारों से जब हम पात्र बन जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तब ही भगवान की कथा, भगवान का चरित्र सुनने का मन होता है। भगवान के चरित्र को सुनना, चरित्र को सुनने के लिए इस सत्संग को प्राप्त करने के बाद सबके बस की नहीं है। इसके लिए तो दान जरूरी है, त्याग जरूरी है, परोपकार सेवा जरूरी है। इसके बाद होती है भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा के बाद जो मिलता है वो सत्संग मिलता है। इसलिए जीवन में ये सब कुछ चीजें तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सत्संग भगवान की कृपा बगैर नहीं होता, पात्र बनने के सिवाय नहीं होता। इसका मतलब अगर आज ये सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है तो जरूर हमारा कुछ पुण्य होगा, त्याग होगा, जप होगा, तब जाके ये सौभाग्य हम सबको यहाँ प्राप्त हुआ है। इसीलिए उस भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं जिसकी करुणा हमारे सबके जीवन में यहाँ पर
बरस रही है। कल भगवान के पहले अवतार के बारे में, पहले अवतार का चरित्र यहाँ पर हमने सुना। भगवान ने इस पहले अवतार में हमें बहुत बड़ा संदेश दिया कि कोई अगर धर्म को नुकसान पहुंचाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि धर्म का क्या होगा। बहुत बार बगैर जरूरी चिंता जीवन में हम लोग करते रहते हैं। हमें चिंता होती नहीं धर्म का क्या होगा। भगवान ने कह दिया कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म को तकलीफ होगी और अधर्म का विनाश करना होगा, तदात्मानम, उस दिन, उसी क्षण, उसी समय, सृजाम्यहम्, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं अलग अलग रूप से प्रकट होके आपके सामने आऊंगा, आपका रक्षण करूंगा। आपका तो काम एक ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका तो एक ही काम है, आप जप करते रहे। अगर मैं सतपंथ की बात करूं तो सतपंथ के ऊपर अगर कुछ थोड़ी बहुत जलन किसी लोगों को हो रही होगी और उसके कारण अगर कुछ तकलीफ इस परंपरा में हो रही होगी तो जरूर हम कुछ तो बातें हैं उसको भूले हैं। हम शिक्षापत्री को भूले हैं, हम पूजा में जाना भूल गए, हमारे हाथ में जो माला दिखाई दे रही थी नहीं दिखाई देती, हम मंदिर में जाना भूल गए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, हमारे वडिल तो जो बात गुरु के मुख से निकल गई बस उसको दिशा समझते थे, उसको मंत्र समझते थे, उन शब्दों को मंत्र समझते थे। मंत्र क्या होते? गुरु के, उस सिद्ध गुरु के मुख से निकला हर शब्द मंत्र होता है, वेदों का मंत्र होता है। क्योंकि जो सदगुरु है, जो गुरु तत्व है, उनके मुख से हर एक निकलने वाला शब्द सोच कर निकलता है, इसीलिए वेदों का मंत्र होता है। वो शब्द शब्द नहीं होता, वो तो आपके लिए गुरु वो तो चाबी होती है, कुंजी होती है। गुरु के मुख से निकला हर शब्द कुंजी है आपके लिए। खोल देना धर्म का द्वार, जो मन को ताला लगा दिया है उस ताले को खोल देना। मन ताड़ू, गुरु मंत्र कुंजी। गुरु के मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र है, उसको मंत्र समझना। अगर मेरे गुरुदेव ने बताया हो कि इस रास्ते जाना है तो बस सिर कट जाए और रास्ता ना छूटे। भगवान को पाने से पहले तो गुरु को पाना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करने से पहले तो गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर गुरु की नहीं मानते हो तो भगवान सामने खड़ा भी नहीं रहने देगा। कुछ काम की नहीं है वो माला आपकी जो जबरदस्ती पकड़ रहे हो, इसको तो जबरदस्ती ही बोला जाएगा। अगर गुरु की नहीं मानते हो तो जबरदस्ती ही बोला जाएगा। इसीलिए गुरु का हर एक शब्द मंत्र है आपके लिए। क्या आपने जीवन में गुरु के उन मंत्रों को उतारा? तो ये जो थोड़ी तकलीफ हर एक सांप्रदाय में होती है, चाहे स्वामी नारायण सांप्रदाय हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे जगत में जो भी सांप्रदाय है उसमें तकलीफ तो होती है जहां सत्यता होती है। तो क्योंकि कितने भी आपको चावल बनाना हो ना तो आप चावल बनाने से पहले साफ करते हो, चावल है ना, चावल साफ करते हो। कितनी कोशिश करो लेकिन 2-3 तो उसमें पत्थर तो निकल ही जाते। संत कितनी कोशिश करे। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो आम का पेड़ होता है ना, तो आम के पेड़ को है ना मोहर लगता है। जब आम के दिन शुरू होते हैं ना तो मोहर ही बोलते हैं ना उसको। आम के पेड़ को मोहर लगती है। तो मुझे बताओ कितनी रहती है? आधी से ज्यादा तो गिर जाती है, थोड़ी कुछ रहती है। जो रहती है उसमें से भी थोड़ी सी कैरी बचती है।
और जो पके हुए आम है इतने से हाथ में आते, लेकिन जब मोहर लगा था आम के पेड़ को तो कितना दिखाई दे रहा था, तब लग रहा था बाप रे बाप अब तो कितने आम मिलेंगे, लेकिन कितने आए हाथ में आपके। ऐसी बातें होती है, इतने आम हाथ में नहीं आते। चाहे भले आप 10,000 की संख्या में हमें सुन रहे हो, लेकिन हमें वक्ताओं को पता होता है इतने से आम हाथ में आएंगे। कई लोग पूछते हैं महाराज लोग सुधरते तो नहीं है, क्यों ये सब ये सारे संत कोशिश करते रहते, तो संतों की ये कोशिश होती है। अरे इतने तो आ जाए, इस 10,000 में से 10 तो हाथ में आ जाए, वो 10 भी काफी है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के 100 शिष्य थे, नहीं बन पाए असल शिष्य, 4 ही बने। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ये 4 मेरे लिए काफी है। चारों को 4 दिशाओं में भेज दिया, चारों दिशाओं में वातावरण खड़ा कर दिया अध्यात्म का, 4 ही काफी। इसीलिए जो अलग अलग परंपराएं है उसमें अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बुरे भी है। कहने का मतलब कि आक्रमण, ये धर्म की बदनामी, ये धर्म को तकलीफ वाली जो बात है वो तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ही चला आ रहा है। ये कोई आज का झगड़ा नहीं है, किसी एक समाज का नहीं, ये तो हर समाज में है। लेकिन हर समाज में उसका उद्दिष्ट अलग हो सकता है, लेकिन है जरूर, क्योंकि ईर्ष्या बढ़ चुकी है, सम्मान की बातें बढ़ चुकी है, विकार अपेक्षा बढ़ चुकी है, और इसीलिए तकलीफ हो रही है। मेरे कहने का मतलब जब जब परेशानी होगी इस धर्म को, तब तक हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तदात्मानम सृजाम्यहम्, हमारा भगवान जरूर आएगा। हमारे से ज्यादा तो उसको चिंता है, क्योंकि अपनी लाज नहीं जाती, लाज तो उसकी जाती है अगर धर्म के कुछ तकलीफ होती है तो, हमारी नहीं जाती, उसकी जाती है। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारे हाथ में है। हम पूजा को नहीं छोड़े, हम पूजा में जाना बंद नहीं करें, मंदिरों में जाना बंद नहीं करें। आज मंदिरों तो बन चुके हैं, लेकिन मंदिरों में जाना बंद हो चुका है। पहले जगह नहीं मिलती थी मंदिर में जाकर बैठने की, अब तो जगह बन चुके बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन बैठने वाले नहीं मिलते। पहले मंदिर मिट्टी के थे, लेकिन इंसान वो आरसीसी के बने थे, अब मंदिर आरसीसी के बन गए और ये ढीले बन गए सब जाने वाले। मंदिर नाजुक हुआ करते थे, लोग मजबूत, अब मंदिर मजबूत बनने लगे, और जहां मजबूत बनने के लिए जाना है वहां हम मजबूत नहीं बनते। हमारे हाथ में है परंपराओं की सेवा, परंपराओं का त्याग, और ये धर्म के लिए, इस परंपरा के लिए अपने सिर को काट देने तक कोशिश रखना, तैयारी रखना, ये हमारे हाथ में है। उस जप को चालू रखना जो हमारे गुरुओं ने दिया, उन मंत्रों को याद करना चालू रखना जो हमारे सदगुरुदेव ने दिया, उस ज्ञान को याद रखना। हमारे स्वभाव में बदल हो गया, हमारी वृत्ति में, हमारी परंपरा में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में। अब तक हमारे इस सतपंथ परिवार में व्यसन की कोई बात नहीं आती थी, लेकिन अब कल मेरे ऊपर कितने सारे मैसेज आए कि महाराज व्यसन की शुरुआत हो रही है, जरा उसके ऊपर भी बात करना। अगर ये आ जाए ना, आपको कोई नहीं बचाएगा, नहीं बच सकते हो आप। और एक बात याद रखना, हमारे वडिलों ने आज जो ये कच्छ की भूमि, ये पावन भूमि है, हम तो वंदन करते हैं इस भूमि को, इतनी इतनी पवित्र ये भूमि है। हमारे वडिलों ने कुर्बानी दी है। आपके बीच जो संस्कार आज दिखाई दे रहे हैं, इतना आसान नहीं है इतनी भारी संख्या में पूरा दिन आपने कथाओं को सुनना, 7-7 दिन, एक दिन नहीं, इतनी भारी संख्या में पूरा समय यहां देना, इतनी धूप में सब काम धाम छोड़ के इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित रहना, ये संस्कार आए कहां से? इसके लिए जरूर किसी ने कुर्बानी दी है। अगर आज हम सुख शांति से इस भारत में रह पा रहे हैं तो इसका कारण है हमारे
देश की जो बाउंड्री है ना, वहां पर जो सैन्य खड़ा है वो उनका बलिदान दे रहे हैं, वो मर रहे हैं, मरने की तैयारी रखे वहां खड़े हैं, इसीलिए हम लोग जी पा रहे हैं। कोई जी रहा है तो किसी की कुर्बानी है, किसी कुर्बानी के बदौलत हम जी रहे हैं। इसलिए उनको मर गया नहीं कहते, उनको कहते हैं शहीद हो गया, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, वो तो औरों के लिए जीते जीते मर गया, औरों के लिए जिया, इसलिए शहीद कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कुर्बानी जरूरी होती है धर्म रक्षा के लिए, बलिदान जरूरी होता है। और आज तो मैं कहता हूं कि ये बलिदान जरूरी बन चुका है, ये समर्पण जरूरी बन चुका है, ये कट्टरता जरूरी बन चुकी है, क्योंकि आक्रमण बढ़ चुका है। और मैं कह दूं कि किसी और का आक्रमण हमारी इस आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर नहीं हो रहा, किसी और देश की कोई ताकत नहीं। अब तक भी हमारे पास समय है, जो हमारे बीच में ही होते हैं ना, वो हमारी संस्कृति को खोखला करते हैं, वो धर्म को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान राम के घर में किसी और ने झगड़ा नहीं लगाया, उसके घर में रहने वाली जो मंत्रा थी उसने लगाया। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा छीनो मन, मुश्किलों में है वतन, खो रहा छीनो मन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। इस जिंदगी को, जिंदगी धर्म को कहा गया, इस धर्म को संभालना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है बलिदान, इसके लिए जरूरी है तप। अगर कुछ तकलीफ हो रही होगी तो समझना कि कहीं तो नियम हमारे हाथ से छूटने लगे हैं। पाड़े बांध्यू जड़ रहे, नीमे बांध्यू धर्म रहे। अगर ये धर्म में तकलीफ हो रही होगी तो समझना कि ये नियम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये नियम को रखना पड़ेगा। नियम में हम ढीले बन चुके, इसीलिए तकलीफ हो रही है। जब शरीर ढीला हो जाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर से खराब हो जाती ना, तो एंट्री तो तभी होती है विकारों के शरीर में। बीमारी तो तब तक आपके शरीर में नहीं आती जब तक आपने शरीर को संभाला हो, लेकिन शरीर को संभालना छोड़ दो तो शरीर में अनेकों रोगों का आक्रमण होगा। धर्म की बात भी ऐसी है, जब तक धर्म में नियमों का पालन हो रहा हो तो किसी की ताकत नहीं तकलीफ करे, लेकिन कहीं तो नियमों में छूटछाट हो रही है और इसके कारण दूसरों को चांस मिल रहा है। इसीलिए मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा, ये जो गैर है ना उनसे तो निपट लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तदात्मानम सृजाम में हम कम पड़ जाए तो हमारा बाप आएगा, उनकी चिंता नहीं है, उन गैरों की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो उनकी है। मुझे तो अपनों ने लूटा, जो अपने हैं उनकी चिंता है, उनसे परेशान हो चुका है धर्म। ये परंपरा है, नहीं तो कोई परंपरा और कोई जाति, कोई समाज में, कोई सांप्रदाय में झगड़ने की बात नहीं बोली। मम एवांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, हमारे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मम एवांशो, अरे जो भी दिखाई दे रहे हैं आप मेरे अंश हो। एक बाजू कृष्ण को मान रहे हैं और दूसरी बाजू जिसने कहा कि मेरे ही अंश है, मैं ही मैं हूं, उसकी नफरत करते हो।
जब भगवान की स्तुति करते हो तो समझते हो भगवान सुन रहा है, लेकिन जब निंदा करते हो, किसी के दोष निकालते हो, तो कहा जाते है आपकी समझ कि ये भी मेरा कृष्ण, ये भी मेरा राम, ये भी मेरा महादेव, ये भी मेरा लक्ष्मी नारायण, ये भी मेरा स्वामी नारायण, ये भी मेरा निष्कलंकी नारायण सुन रहा होगा। निंदा नहीं सुनता, बहुत चालाकी करते हो। जब दान देते हो तो समझते हो भगवान देख रहा है, लेकिन जब चोरी करते हो तो समझते हो कोई नहीं देख रहा। तू चालाकी ओછી कर, ભગવાનની મહેરબાની વધારે થશે। तू चालाकी ओછી कर, ભગવાનની મહેરબાની વધારે થશે। हम बहुत चालाकी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्म में चालाकी नहीं, धर्म में तो भाव जरूरी है। भाव से बचना, चालाकी से नहीं, बुद्धि से नहीं। इस बुद्धि को बंद कर देना, इस तर्क वितर्क को कम कर देना, क्योंकि ये तर्क वितर्क जब तक, शंका कुशंका जब तक चालू रहेगी, तब तक न तो भक्ति होगी, न तो भाव जगेगा, न तो हृदय में तड़प जगेगी, न तो हृदय में तरस जगेगी, प्यास जगेगी आपके। इन सारी चीजों को बंद करवा देना। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब जब सृष्टि में जरूर होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। पहले मत्स्य अवतार में हमारे भगवान ने कहा कि देखो, उस शंकासुर की तकलीफ हो रही थी तो हम मत्स्य बने, जहां छुपा हुआ था वहां हम पहुंचे और उसका वहां पर उद्धार किया, उसको नहीं छोड़ा। और वेदों का, इस वैदिक धर्म का रक्षण परमात्मा ने किया। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें तो एक बात करनी जरूरी है, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जगत गुरु श्री का भी अभिवादन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ये आपकी ताली जरूरी है, इससे होगी धर्म रक्षा। इस तरह आपको हमेशा साथ बैठना जरूरी है, इससे होगी धर्म रक्षा। इससे सत्य की जय होगी, इससे अधर्म का नाश होगा और इसी से विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए संघे शक्ति कलियुगे। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण
नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 सद्गुरुदेव भगवान की परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हुए हम सुन रहे थे तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जरूर होगी तब भगवान जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले भगवान आ जाए उसकी साधना, उसका तप करना जरूरी है। और जब तक वो साधना और तप शुरू रहेगा तब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी। आज नियमों में कहा तो थोड़ी कमी आई है, कमी दिखाई दे रही है और इसीलिए सारी तकलीफें बड़ी दिखाई देती है। और जब तक तकलीफों की बात करूं तो इतनी तकलीफ तो आपको नहीं हो रही है जितनी संत मीराबाई को हुई थी, प्रहलाद को हुई थी। इतनी तो तकलीफ नहीं हो रही है। उन्होंने तो इतनी बड़ी तकलीफ सहन करने के बाद भी नारायण नाम को नहीं छोड़ा, यहां आना नहीं छोड़ा सत्संगों में। क्योंकि अब ही लोग सत्संग में आने से रोकते, ऐसा थोड़ी है। ये तो परंपरा है। जैसे सतपंथ की परंपरा तब से चली आ रही है, तो सत्संगों में जाने से रोकने वाली परंपरा भी तो तब से आ रही है। ये मंदिरों में जाने से रोकने वाली परंपरा भी तब से आ रही है। यहां मत जाना, वहां ये जो परंपराएं चली आ रही है ना फॉर्म भरवाने की, ये अब से थोड़ी है। ये परंपरा तो तब से चली आ रही है और आज भी शुरू है ये परंपरा। और मैं कहता हूं ये शुरू भी रहनी चाहिए, ये शुरू ही रहनी चाहिए। इससे तो धर्म की चमक बढ़ती है, इससे तो धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है, इससे तो तीव्रता बढ़ती है, इससे तो आक्रामकता बढ़ती है धर्म की। ये होना ही चाहिए। क्योंकि रावण को निकाल दो रामचरित्र से तो उतनी मजा भी नहीं आएगी। महिमा बड़ी होगी भगवान राम की तो उसमें थोड़ा बहुत तो रावण का भी रोल आता है। इसलिए जरूरी है ये परंपरा भी। एक बात को समझना, जब भगवान तकलीफ दे तो एक बात याद रखना, रेस में जीतेला घोड़ाने ये नहीं खबर होती कि जीत શું છે। એ તો માલિક દ્વારા અપાયેલી તકલીફના કારણે દોડે છે। રેસમાં જીતેલા ઘોડાને એ નથી ખબર હોતી कि जीत શું છે। એ તો માલિક દ્વારા જે તકલીફ અપાય છે આના લીધે દોડે છે। આ પ્રમાણે એવી રીતે જ જ્યારે તમારો માલિક તમને તકલીફ આપશે ત્યારે સમજવાનું कि તમારો માલિક તમને જીતાડવા માંગે છે।
તમારો માલિક તમને જીતાડવા માંગે છે. જ્યારે તમારો मालिक તમને तकलीफ આપे, इस तकलीफ को तो भगवान की प्रसादी समझ लेना. इस तकलीफ को तो आसानी से स्वीकारना, हिलना मत. भले आपका सिर कट जाए. यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, बंदगी आशिकी इतनी सस्ती नहीं है. ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है. गोपियों ने उस उद्धव को कह दिया कि अरे बंदगी क्या होती है, आशिकी क्या होती है. उद्धव आपको नहीं पता, जैसे आए हो ना वहां से निकल जाओ. ये आशिकी आपको पता नहीं है. कई लोग पूछते ना, क्यों यार इसके पीछे पड़े हो, क्यों इस परंपरा में मानते हो. तो उसको समझाना, गोपियों की भाषा में समझाना, अरे तो प्रेम की बात है मूर्खो, बंदगी तेरे बस की बात नहीं है. ये सबके बस की बात नहीं होती. पीऊ पीऊ सब जग कहे, पीऊ न पावे कोई मुखे जपंता, पीऊ ना मळे ये तो सिर के साटे होए. ये तो पीऊ परमेश्वर तो तभी मिलेगा जब सिर काट देने की तैयारी रखोगे. इसलिए हिलना मत, इसलिए घबराना मत. जरूरी नहीं है, ये तो आजकल नहीं, ये तो हमेशा की चली आ रही बात है. इसलिए हमारे हाथ में तो बस भगवान को, अपने प्यारे को याद करते रहे, अपने नारायण को याद करते रहे. क्योंकि जरूरी ये नहीं है आप किस संत को मानते हो, जरूरी ये नहीं है कौन से भगवान को मानते हो. ये बातें जीवन में जरूरी नहीं होती. जरूरी होती है जिस, भले चाहे जिस संत को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जरूरी ये है हम कितना पवित्र जीवन जी रहे हैं. ये आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति वाली जो बात है वो आचरण से मानी गई, वो आपकी कृति से मानी गई. कब सिद्ध होगा आपको, आप वैदिक हो नहीं हो, कब सिद्ध होगा आपके आचरण से कि आप व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हो, तो हाँ आप आर्य हो, आप वैदिक हो, क्योंकि वेदों ने इसका निषेध किया. आप अगर एक पवित्र जीवन जी रहे हो तो हाँ आप वैदिक हो, क्योंकि आपने परंपरा का पालन किया. लेकिन जो लोग व्यसनी है, जो मांसाहार किए जा रहे हैं, जो किसी व्यसनों को किए जा रहे, जो औरों के लिए नासुर बन चुके हैं, जो औरों के लिए समाज, ये देश, ये हिंदू सनातन परंपरा, ये वैदिक परंपरा, ये समाज, ये राष्ट्र, इसके लिए नासुर बन चुके हैं, दिक्कत बन चुके हैं, जो खड्डे खोद रहे हैं इन राष्ट्र के बदनामी के लिए, वो लोग वैदिक नहीं हो सकते. उनका इस राष्ट्र के ऊपर प्रेम नहीं हो सकता. मैं तो एक सीधी सी बात आपको कह दूं, इस राष्ट्र में रहने वाले अगर किसी इंसान के ऊपर आप गुस्सा करते हो, उसकी नफरत करते हो, तो उसके ऊपर नहीं, वो राष्ट्र की नफरत होती है. क्योंकि इस दुनिया में, इस राष्ट्र में रहने वाले, ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र की संपत्ति है. किसी का विरोध करना ये भगवान का विरोध है. विरोध करना हो तो किसी के दुर्गुणों का जरूर करना, किसी के दुराचार का जरूर करना, किसी के व्यसन का जरूर करना. लेकिन जहां पवित्रता हो, जहां नियम हो, जहां परंपरा हो, जहां कोई इतिहास हो, जहां कोई समझ हो, उसका विरोध मत करना. उसके साथ में बैठ जाना, उसको तोड़ना मत, उसको तो जोड़ना. इसीलिए किसी भले चाहे संत को हम भगवान को माने, किसी परंपरा को माने, ये जरूरी नहीं है. ये तो आखिर में एक है. यहाँ पर जब राम भगवान को राम सेतु बनवाना था, तो राम भगवान ने पहले तो वहाँ शिव जी की पिंड का निर्माण किया और पूजा की, और शिव जी की प्रार्थना कर रहे हैं राम भगवान, और पीछे हनुमान जी खड़े हैं. हनुमान जी कौन, किसके अवतार? रुद्रावतार, 11वें रुद्र, महादेव जी के अवतार हनुमान जी. तो राम जी की सेवा करने कौन खड़े हैं? हनुमान जी, मतलब शिव जी. और राम जी किसकी सेवा कर रहे? राम जी किसकी सेवा कर रहे? शिव जी की. और राम की सेवा में कौन खड़े हैं? शिव जी. मालिक तो दिलदार है, चमचों से परेशान है. इन मालिकों का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये चमचों ने परेशान किया.
क्या किसी को भगवान ने ठेका दे रखा है? कौन किस भगवान को माने, कौन किस परंपराओं में माने? ये जरूरी नहीं है। समाज एक हो लेकिन हर घर में हर भगवान की पूजा हो रही हो, और यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। क्यों माना जाता है आपका भारत? हमारे भारत की महिमा क्यों मानी जाती है? क्योंकि अलग अलग जो परंपराएं है वो आनंद से रह रही है हमारे इस भारत में, इसलिए तो भारत माना जाता है। जब आपको एक फूल देना हो भेंट में, और फूल की जगह अनेकों कलर के फूल मिक्स करके आपने अगर एक गुच्छ बना दिया, एक बुके बनवा दिया, तो कितना बढ़िया लगता है, हर कलर के फूल जिसमें हो। तो ये हमारा भारत है, इसमें हर कलर है, हर परंपरा है, अलग अलग परंपरा, लेकिन आनंद से रहती है। इसीलिए सर्वानुभूति परमेश्वर, सब भूमि गोपाल की। इसीलिए हम पवित्रता को माने, ये जरूरी समझे कि हमारे समाज के लिए कौन से भगवान जरूरी है, ये नहीं। हम ये जरूरी समझे हमारी समाज में पवित्रता कितनी है, इसको समझे, इसको लाने की जरूर कोशिश करें। भगवान तो हर स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में प्रकट है। तो इसीलिए ये धर्म में जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ का कारण है हमारे झगड़े, हमारी विवशता, हमारा स्वार्थ, हमारे विकार, हमारी नफरत, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश, इसके कारण ये तकलीफ हो रही है। लेकिन संघे शक्ति कलियुगे, जब एक हो जाओगे तो किसी की ताकत नहीं आपके ऊपर उंगली करे। इसीलिए भगवान ने कहा जब जरूर होगी तो मैं मत्स्य बन के भी आऊंगा, और शंकासुर का जैसा वध किया और वेदों का रक्षण किया, तो मेरी वो जिम्मेदारी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जो आपका कर्म है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है, बस उतनी जिम्मेदारियों को आप निभाते रहना, उसको जिम्मेदारी से निभाना। इसलिए पूजाओं में जाना, मंदिरों में जाना, उन मंत्रों को समझना हमारे सब के लिए जरूरी है। तो पहले इस अवतार में एक रुखमांगत नाम का भक्त हुआ। हमारे सदगुरुदेव उसका चरित्र कहते हुए कहते हैं कि कांति नगर नाम का एक नगर था, वहां पर रुखमांगत राजा राज्य कर रहा था। संध्यावली उसकी पत्नी थी और धर्मांगद नाम का एक बेटा उनके घर था। आगे चल के कथा कहती है कि ये राजा जो था वो एक लक्ष्य पुष्प भगवान के चरणों में हर दिन चढ़ाता था, एक लक्ष्य पुष्प हर दिन। लेकिन लाने में तकलीफ हो रही थी तो खुद का बाग बनवा दिया, वहां फूल लगाता था, फिर फूल तोड़ के लाना आसान हो गया। लेकिन अब उन फूलों की चोरी होने लगी। सेवकों को कहा कि कौन चोरी करते देखना जरा। तो एक दिन एक विमान आ रहा था, तो उस विमान को पकड़ने की कोशिश उन सेवकों ने की। धुआं जलाया, धुएं के कारण, अपवित्र धुआं होने के कारण, उस अपवित्र धुएं के कारण वो जमीन पे आ गिरा, जमीन का स्पर्श हुआ। उन दूतों को पकड़ा, राजा के सामने, रुखमांगत के सामने ले गए और कहा ये चोर हमने पकड़े। बोले कहाँ से आए थे भाई? बोले इंद्र के दूत है। तो बोले चोरी क्यों कर रहे थे? बोले ये भगवान को, इंद्र को पसंद आए तो हम लेने आ जाते थे। तब रुखमांगत को लगा कि अरे तो ठीक है, मेरे फूल तो स्वर्ग में जा रहे हैं, मेरे बाग के फूल डायरेक्ट जा रहे हैं, तो फिर वाया भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो अच्छी बात है, हमने आपको माफ कर दिया, आप हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि हमारे फूल स्वर्ग में जा रहे हैं। जब विमान में बैठे, विमान उड़ नहीं रहा था। दूतों ने बोला कि राजा अब तो ये उठेगा नहीं, स्पर्श हो गया जमीन का, ये जमीन पे स्पर्श नहीं होता था इसका, अब ये उड़ेगा नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आज 11 का दिन है, एकादशी 11। तो आज अगर किसी ने व्रत किया होगा, ये कृतायुग का एक प्रमुख व्रत है, तो ये 11 का व्रत किसी ने किया होगा और उसने अगर आज उसका पुण्य यहाँ पर दे दिया तो ये उठेगा, नहीं तो नहीं। बोले 11 क्या है, हमें तो पता ही नहीं।
बोले अज्ञारस क्या है पता नहीं। बोले मुझे राजा को पता नहीं है तो ये जनता को प्रजा को कैसे पता होगा। बोले अब करे तो क्या करे। बोले पता नहीं, इसके लिए कोई करता नहीं होगा। बोले एक काम करो राजा जी, अगर किसी कारण आज किसी को भोजन न मिला हो और अब तक भूखा हो वो भी चलेगा। दूतों को गांव में भेजा। फिर जैसे एक दूत एक गली से जा रहा था, एक माताजी ओटे पे बैठी थी घर के बाहर, बाल ऐसे खुले थे और हाथ पैर जोर जोर से हिला रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी। जब दूत ने पूछा कि माताजी क्या हुआ, बोले मेरे से बात मत करना, इस समय में एकदम बात नहीं हो सकती, जब टेम्परेचर हो। आप भी नहीं कर पाते होंगे, थोड़ा समय देना, फिर थोड़ी ठंडी हो जाए बात, फिर चालू करना, नहीं तो गर्मी ज्यादा बढ़ती जाती है। उसने पूछा माताजी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। बोले आज तो मैं घर में जाऊंगी ही नहीं, मैं तो सोच रही हूँ बस यहां से अब निकल जाना है। बोले क्यों। मैंने आज खाना भी नहीं खाया, सुबह से जल नहीं पिया और पीऊंगी भी नहीं। तो दूत ने सोचा कि अरे जिसको ढूंढने आए थे वो तो मिली। उसको बोला कि एक काम करो, राजा जी के पास चलो, जो भी दुख होगा कम हो जाएगा। बोले चलो ठीक है। बोले मुझे भी कंप्लेन करनी राजा के पास। राजा के पास गई, राजा को कहा कि राजा जी ये भूखी है सुबह से, इसने तो जल नहीं पिया। बोले क्यों। बोले झगड़ा कर रही थी तो जल भी नहीं पिया, झगड़े के कारण भूखी रही है। तो चले, उन दूतों को पूछा क्या ये चलेगा। बोले चलेगा। उसके हाथों संकल्प करवा दो। उसके हाथों संकल्प किया, वो जो उसका पुण्य था, योगायोग से व्रत हुआ था, वो पुण्य वहां पर दान किया व्रत का, तो तात्काल वहां से वो विमान उठा, वो उसने प्रवेश किया सेवकों ने, और सेवक फूल लेकर निकल गए। आज से राजा को पता चला कि इतनी बड़ी महिमा है अज्ञारस की कि विमान उठ गया। भूल से भी तप हुआ, जप हुआ, व्रत हुआ तो इतना पुण्य मिला। उस दिन से राजा ने सारी जनता को कहा आज से सबको ये व्रत करना होगा। कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध भी नहीं पिलाएगी अज्ञारस के दिन। कोई बछड़े को दूध मत पीने देना गौ माता का। उन प्राणियों को भी व्रत, उन प्राणियों का भी व्रत हो, नियम बनवा दिया। अब सबने नियम का पालन किया तो सबके सब स्वर्ग में जाने लगे। अब जो यमराज का काम था वो कम हुआ। जो कुंभीपाक बोलते ना यमराज का, उसमें तकलीफ होने लगी, कोई आ ही नहीं रहा था, सब स्वर्ग में जा रहे हैं। तो इंद्र को बोला कि इंद्र जी मेरी ड्यूटी कम हो जाएगी, मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, मेरी ओर तो कोई आ नहीं रहा है। बोले क्यों। बोले सब के सब व्रत उपवास कर रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, तो अब क्या करे। तो इंद्र ने कहा एक काम करे, एक किसी मायावी शक्ति को यहाँ पर हम निर्माण करते हैं और वहां पर उस व्रत को भंग करने के लिए, क्योंकि इंद्र और यमराज दोनों ने एक युक्ति बनाई, जब तक ये व्रत चालू रहेगा तो ऐसा ही होने वाला है, तो इस व्रत को भ्रष्ट करना होगा, इस व्रत को समाप्त करना होगा। और इसीलिए वहां पर उन्होंने एक मायावी शक्ति का निर्माण किया, मोहिनी, मायावी मोहिनी का निर्माण किया। और देखो पत्थर तो उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं, नहीं तो जो बाभल का पेड़ बोलते हैं ना, बाबुल का, बावड़ का पेड़, उसको किसी ने, आपने देखा है कभी पत्थर मार रहे। तो जो आपके ऊपर पत्थर आ रहे हैं ना, तो समझना ये फल वाला पेड़ है, इसलिए पत्थर आ रहे हैं। बावड़ का होता तो पत्थर नहीं आता, ये बावड़ का होता तो पत्थर नहीं आता। दूसरी बात, यहाँ पे जब तप हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, नहीं अच्छा दिखाई दिया यमराज को और इंद्र को,
क्योंकि इनको क्यों नहीं अच्छा लगा कि अरे, क्योंकि जब कोई तप करने लग जाता है तो इंद्र की कुर्सी हिलने लग जाती है, यही भय होता है इंद्र को। और इसीलिए जहां तप हो रहा हो, जहां समाज में व्यसन मुक्त समाज का निर्माण हो रहा हो, जहां जप तप, ये सब इतनी बड़ी संख्या में युवान यहां पर बैठे हैं, इन युवानों में इतना धर्म आ चुका है, इतनी परंपरा, इतने संस्कार आ चुके हैं, ये सबसे नहीं दिखाई देता, अच्छा सबको नहीं दिखाई देता। इसीलिए लोग तकलीफ करवाना चालू करते हैं। यहां पे भी ऐसे ही हुआ, इंद्र को अच्छा नहीं लगा, यमराज को अच्छा नहीं लगा, मोहिनी का निर्माण किया उसको फंसाने के लिए। इसलिए सतपंथ को फंसाने के लिए भी कई मायावी मोहिनी का निर्माण किया गया है। वो सतप्रकाश हो, वो कितनी कितनी किताबें छपवा रहे हैं। भले चाहे कोई कितनी किताबें छपवा ले, सतपंथ की बदनामी के लिए, जब तक ये वाणी चालू है ना संतों की, तब तक ये किताबें कोई असर करने वाली नहीं है, समझना। अगर कोई शपथ ले रहा हो बदनामी की, नेस्त नाबूद करने की, तो हम संतों ने भी तो शपथ ले रखी है, सन्यासियों ने भी तो शपथ ले रखी है इसको बचाने की। देखते हैं अब कौन जीतता है। और हमारे लिए तो ये बहुत बहुत गर्व की बात है कि चलो हमें भी कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है कुछ कर दिखाने का, जो होता है अच्छा होता है। ऐसी कई, जैसे मोहिनी का निर्माण किया गया, वैसे ये सबको पसंद नहीं आता। आप लोगों ने इतना समय देके यहाँ पे बैठना, ये आसान नहीं है। चलो पैसा खर्च करने की बात छोड़ दो, क्या आपने यहाँ पैसों से लोगों को बुलाया है? आने वाले सबको कुछ देने वाले हो बाद में, पाकिट में कुछ 5-5 हजार सबको, कि इतनी 10,000 की संख्या में लोग यहाँ पर आए? नहीं, सीधी सी बात है, ये तो श्रद्धा है, ये तो विश्वास है। और यही तकलीफ हो रही है सबको कि अरे ये कोई एक कार्यक्रम रख दे तो ये पूरे के पूरे सब आ जाते हैं, पूरा समय। ये कितने पागल बन चुके हैं। तो आपकी प्रगति, आपकी उन्नति, क्योंकि आज दुनिया में लोग ऐसे भरे पड़े हैं, वो खुद के दुखों से तो दुखी नहीं होते, लेकिन औरों का सुख देख ले तो दुखी जरूर हो जाते हैं। ये लोगों का दुख है, वो खुद के दुखों से दुखी नहीं है। किसी को सुखी देख ले, किसी की प्रगति होते देख ले तो दुख आ जाता है, रात्रि को सो नहीं पाते। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, ये तकलीफ है। इसीलिए फिर कई ये माया निर्माण कर देते, अलग अलग किताबें। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बोले महाराज ये किताब सही है, ये किताब सही है। मैंने बोला छोड़ नहीं उसको, हम हमारा गला खराब कर रहे ये सब सुनाने के लिए सारे के सारे संत महात्मा, वो सुनना नहीं है। पता नहीं कहाँ से किताब लेके आते हो, इसने छपाई उसने छपाई, जो प्रेरणा पीठ की है वो आपकी है, बात खत्म। जरूरी नहीं है। ट्रेन के ड्राइवर पे भरोसा रख देते हो, पायलट पे भरोसा रख के बैठ जाते हो, या संतों के भरोसा हम नहीं रखते। जो हमारी प्रेरणा पीठ की बात होगी वो आपके लिए फाइनल है। भले चाहे कितनी किताबें कोई छपवा दे, जरूरी नहीं है। क्या कमी है? मैं कहता हूं कि जितना हमारे सदगुरुदेव ने दिया उतना तो हजम करो पहले, उसको तो समझो। अमृत वाणी की एक लिटी समझने में पूरा जीवन जाएगा आपका, अगली लिटी की तो बारी नहीं आएगी। अगर समझना चाहो, अगर भगवान को मिलना चाहो तो एक लिटी काफी है, एक पंक्ति काफी है। मूलबंध की एक लिटी काफी है आपके लिए, दशावतार की एक लिटी काफी है आपके लिए। बाकी बातें तो छोड़ ही दो। तो क्यों हम तर्क वितर्क करते रहते हैं? और किसने अधिकार दिया? सदगुरुदेव के ऊपर या इस परंपरा के ऊपर कुछ लिखे, कुछ बोले, किसने अधिकार दिया? और क्यों सुनते हो आप लोग, क्यों पढ़ते हो आप लोग? आपने किसी और चीज में रस रखना, इसका मतलब आप आपके बाप के ऊपर, आपके परंपरा के ऊपर शंका रखते हो। एक बार हमारी माँ, गुरु हमारी माँ है, हमारी माँ ने बता दिया ना हमारा बाप कौन है, क्योंकि बाप कौन है वो तो माँ बताती है। हमारी माँ गुरु है, हमारे गुरु ने बता दिया हमारा बाप कौन है, फिर किसको बताने की जरूरत क्या होती है? हमारा बाप कौन है, कहां से आया, कौन था, लेना देना किसी को जरूरत नहीं है। हमारी माँ हमारी गुरु है, हमारे गुरु ने बता दिया बेटा ये तेरा बाप है, बात खत्म।
माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता बाप कौन है। तो माँ अगर बता देती है, अगर माँ ने बता दिया बेटा तेरा ये बाप है, क्या शंका रखोगे बाप के ऊपर, माँ के कहने के ऊपर? वापस वापस पूछने जाओगे, माँ सही में यही है ना मेरा बाप, सही में यही है ना मेरा? जाओगे वापस? बात खत्म है। हमारी माँ कह देती है, गुरु कह देते ये तेरा बाप है, बात खत्म। फिर हमारे अगर बाप, हमारे गुरु ने अगर कह दिया, एक एक पत्थर के ऊपर उंगली करके कह दिया ये तेरा बाप है, तो बात खत्म। उस एकलव्य जैसी श्रद्धा को रखना उस मूर्ति के ऊपर जो अर्जुन नहीं सीख पाया, वो मूर्ति सिखाएगी आपको। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। कहाँ विराजते हैं भगवान? भगवान तो भाव में विराजते हैं। जो अर्जुन नहीं सीख पाया, अंगूठा लेना पड़ा था उसका एकलव्य का। क्यों? क्योंकि अर्जुन से बड़ा बन रहा था। अर्जुन को तो खुद द्रोणाचार्य जी ने सिखाया, लेकिन एकलव्य जो सीखा था उसने तो एक मूर्ति बनवा दी और उसके आधार पे सीखा था। बड़ा तो वो बना। जो विद्या तो अर्जुन के पास नहीं थी वो तो एकलव्य के पास आ गई। कौन से आधार पे? मूर्ति के आधार पे। चलो गुरु आप हमें नहीं बना रहे हो चेला, तो हम आपको गुरु बना देते। एक मूर्ति बनवा दी और शिक्षा प्राप्त कर ली। ये होती है श्रद्धा, ये होता है भाव। इसलिए जरूरी नहीं है हमने वापस वापस उस चीज में जाना। क्यों चिंता करते हो ये सदगुरु कौन से थे, कहां से आए थे? हम ये चर्चा बंद कर दे और चर्चा करें कि उन्होंने कहा क्या, उनकी वाणी क्या कहती है। एक वाणी को तो सुनना, आंख में, दिल से सुनना। आंख में आंसू ना आ जाए तो कहना। अगर दिल से गाते हो उस गौर वाणी को, उस योग वाणी को, बात पता चलेगी ये चीज क्या है, ये परंपरा क्या है। ये देखना नहीं है। ये संतों को छोड़ दो, कोई भी संत हो, उनके स्वरूप को छोड़ दो, उनके नाम को छोड़ दो, उनके गांव को कहां से आए थे, उनकी परंपरा कौन सी थी, कौन सी जाति, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। जब किसी संकट में फंसे हो और संकट से बचना है और वहां कोई अलग जाति का आदमी आ जाए, तो क्या ये कहोगे नहीं भाई मेरे समाज का, मेरे जाति का आएगा, मेरे धर्म का आएगा तभी मैं बचूंगा, नहीं तो तू जा? नहीं कहोगे आप तो कहोगे अरे तेरे स्वरूप में तो मेरा भगवान मुझे बचाने आया, तब बराबर कहोगे। इसीलिए ये सारी चीजें छोड़ दो। और एक बात याद रखना, जिसने भी इस गौरवाणी को, योगवाणी को, निष्कलंक की गीता को, इस मन चिंतामणि को, इस शिक्षा पत्री को पढ़ा हो, समझा हो ना, वो कभी जाति तक नहीं जाएगा। जो जाएगा समझना उसने इसमें डूबा ही नहीं है, उसने डुबकी ही नहीं लगाई। और मोती को पाना हो तो किनारे पे खड़े रहने से नहीं मिलता, उतर पानी में। वो तो डूबने से, वो तो डुबकी लगानी पड़ती है समुन्द्र में, तब मोती मिलते। लोग किनारे पे खड़े रहते, ऐसा हाथ पर हाथ धरे खड़े रहते और लोग बोलते मोती चाहिए। ऐसा थोड़ी मिलेगा भाई, कूद पानी में, उसमें डुबकी लगा तब जाके कुछ मोती हाथ में आएगा। भले एक डुबकी में ना लगे, दूसरी डुबकी लगाना। नहीं हाथ में आए तो समझना ये ऊपर ऊपर हो रहा है, थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करना, तल में, मूल में जाने की कोशिश करना।